Let us discuss our next illustration. So question says a body covers 12 meter in second and 20 meter in fourth second. How much distance will be covered by the body in 4 second and fifth second? So that is a question. Okay. We know the general expression. General expression says S nth equals u plus a by 2 upon 2 n minus 1. Considering the considering the value for n equal to 2, I can say distance traveled in the second, that is u plus a by 2 into here n equal to 2, so here this is going to be 3. Now distance traveled in the fourth second, here it is going to be u plus a by 2 into n equal to 4, so here this is going to be 7. Now let me substitute the value for s second and s fourth. So here it is. So let this be equation number 1 and let this be equation number 2. So equation number 1 now will become 12 equals u plus 3a by 2. Let this be 4. And now equation number 2 will become 20 equals u plus 7a by 2. And let me call this as equation. Why it is 4? It should be 3. And let this be 4. Now I'm going to take the u value towards the left. So here this is going to be 12 minus u, that equal to 3a by 2. Okay, and 20 minus u, that equal to 7a by 2. So now this is equation number 5 and this is equation number 6. So you might be wondering what was the purpose of such a move. Actually the thing is that आपको भी पता है कि if I need to calculate the distance traveled after 4 second as well as distance traveled in the 5th second, मुझे u और a का वैल्यू मुझे मैंडेटरी है ही है from this particular expression, because हमारा जो जनरल एक्सप्रेशन है उसमें से क्लियर है I must get the value of u, I must get the value of a. So बस मेरे पास गिवन डेटा ये दो चीजें हैं, एक तो डिस्टेंस ट्रैवल इन द सेकंड दे रखा है, डिस्टेंस ट्रैवल इन द फोर्थ सेकंड दे रखा है. सो ये दो डेटा मेरे पास हैं. So from these two given values only I can get the value of u and a. So equation number 3 और 4 में ये u को मैं लेफ्ट की तरफ, like if I am taking the u value towards the left, then मैं डिवाइड करोगे तो a और a का टर्म कैंसिल हो जाएंगी आराम से, मुझे इसमें से u का वैल्यू मिल जाएगा. और जब मुझे u का वैल्यू मिल जाएंगे आई कैन सब्स्टिट्यूट दैट इन इक्वेशन नंबर 3 और 4. कोई सी भी एक एक्सप्रेशन में 3 और 4 में पुट करोगे देन आई कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ a एज वेल. सो दैट इज व्हाई कि मैंने u को लेफ्ट की तरफ लिया. ऑलराइट, सो आप देखिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ नेक्स्ट. सो as discussed I am going to divide equation number 5 with 6. डिवाइड करते वक्त क्या हो जाएंगे, 12 minus u upon 20 minus u. I will get the value as 3 by 7. Okay, while solving this I will get the value of u as, this will give me the value of u as 6 meter per second. Okay, I got the value of 6 meters per second. Now let me substitute this value. Okay, so let this be equation number 7. Okay, now substituting value of u from 7 in आप 5 में भी कर सकते हैं और you can substitute in the value of 6 like equation number 6 also. Okay, let me choose 5. So 12 minus u का value 6 है, that equal to 3a by 2. This will give me the value of a as 4 meter per second square. So now I got the value of a also. Okay,
Now the thing is distance travel in 4 seconds. I repeat, distance travel in 4 seconds. How to get distance travel in 4 seconds? We know that s equal ut plus half at square. Okay, distance travel in 4 seconds is going to be u का वैल्यू हमारे पास 6 है, t का वैल्यू 4 प्लस हाफ ऑफ a का वैल्यू कितना था, a का वैल्यू हमें मिले थे 4, isn't it? 4 into t का वैल्यू 4. This will give me the value as 56 meters. So this is distance traveled in 4 seconds. Now finally distance traveled in the 5th second. S fifth. That is, हमें जनरल एक्सप्रेशन हमें पता है. What is जनरल एक्सप्रेशन? U plus, isn't it? What was the value? U of U plus a by 2 into 2n minus 1. A by 2 into 2n minus 1. So you need to substitute the value as u equal to 6, a equal to 4 by 2 into 2 into n का value 5th second, isn't it? So it is going to be 5 minus 1. Okay, now this will give you the value as solving. You'll get it as 24 meter. All right. Dear students, let us discuss another illustration. Question says, two buses A and B are at 50 meter and 100 meter from the origin at time t equal to 0. They start moving simultaneously in the same direction with speed 10 meter per second and 5 meter per second respectively. Determine the time and the position at which A overtakes B. Okay, so इसका diagram मैं already आपके लिए बना रखा है to save your time. So you can see that this is bus A. So this is bus A, fine, and this is bus B. So आप देख सकते हैं the speed of bus A is 10 meter per second and speed of bus B is 5 meter per second. So of course after a particular duration of time, or you can say that after traveling its distance, of course A is going to overtake B. So that two things, after what time A will be able to overtake B, and after traveling what distance it can happen. So that is a question. So I'm going to consider A and B as a point object. Point object means if the distance traveled by the body is very greater compared to the size of the body, so then that object can be treated as a point object. So either bus का जो dimension, like I can say that bus का जो length है, if it is much greater than the distance traveled by the bus, so bus को आप एक point object आप consider कर सकते हैं. Okay, so this is that origin. Okay, से आपका बस इधर था, this was position of A. So I would like to mention this position as x1 of A, x1 of A, and let this be the position of the second bus, that is x1 of B. Okay, A is traveling with, so this was x1 of A and this x1 of B. So as the question says, A is traveling with a greater speed, so let me say that at this particular position, so this is the path, so at this particular position, let A and B be at the same point. So इधर आकर के इस position में overtaking possible हो पाएगा. Okay, so you can see that x2 of A and x2 of B, यानी कि final position of A and B is the same only, है ना? Final position of A and final position of B is the same. Okay, now x2A, यानी कि फाइनल पोजीशन ऑफ A का वैल्यू मैं देखता हूं, x2 ऑफ A. x2 ऑफ A बोले तो देखो दिस इज द डिस्टेंस, है ना? सो दैट इज क्या हो जाएंगे, x1 ऑफ A
प्लस कितने स्पीड से ट्रैवल कर रहा था, a was traveling at the speed of, say, I believe it was 10 meter per second. Yes, 10 meter per second से ट्रैवल कर रहे थे. So 10 meter per second into time taken is t. ओवरटेकिंग का मतलब सेम टाइम में दोनों बॉडी एक ही पोजीशन में आया, उसके बाद एक दूसरे के आगे निकल गया, दैट इज नोन एज ओवरटेकिंग. सो टाइम टेकन क्या होगा, दोनों में सेम हो जाएगा. सिमिलरली x2 of b क्या होगा, इनिशियल पोजीशन ऑफ b दैट इज x1 of b into इसका स्पीड कितना 5 into time taken is t. Okay, so this is equation number 1 and this is equation number 2. ये equation number 2 है और ओवरटेकिंग में हमें पता है x1 equal to x2 है, so I can equate 1 and 2. Okay, 1 and 2 के इक्वेट करते वक्त x1 of a का वैल्यू कितना था, x1 of a was 50. Okay, this is going to be 10 times t, that equals x1 of b, that was 100, and it is 100 plus I think I made a mistake here, should be plus. Okay, so 100 plus 5 times t. Okay, so it's very clear. Solving this, आपको पता है 2t, sorry not 2t, 5t, 5t, it's going to be 50. Okay, so t equal to 10 second. So the position, sorry, the time after which bus A is going to overtake B is t equal to 10 second. So we got the first part. Now the second part, at what position? Position बोलते it's same for both, है ना. तो इसमें आप इक्वेशन नंबर 1 या 2 में इसको पुट कर सकते हैं. I prefer 1. So x2 of A equal to x2 of B equals 50 plus 10 into 10. Okay, so it is 150 meters. That means after traveling a distance of 150 meter from the origin, so at that position A will be overtaking B. You can check that by substituting the value in B second equation as well. So आप देख सकते हैं सेकंड इक्वेशन में अगर आप पुट करोगे x1b का वैल्यू कितना था 100, isn't it, plus 5 into time taken is 10. All right, so here also you are getting it as what, 150 meter. So after traveling a distance of 150 meter from the origin, okay, A will be overtaking B, and at that time t was equal to 10 seconds. Dear students, our next topic is motion under gravity. Okay, so motion under gravity इसका मतलब कोई भी बॉडी सिर्फ only under the influence of gravitation of earth, motion of body only under the influence of gravitational pull of earth, that is what we are going to discuss under this topic. Okay, so इसमें हमारा जो discussion है it is limited to free fall only. free fall का मतलब अर्थ के सरफेस में कोई भी बॉडी falling towards the earth's surface due to the gravitational pull of earth, that is known as a body under free fall. Okay, now so for that particular body, that means for the body which is under free fall, it will be only experiencing acceleration due to gravity, and acceleration due to gravity को हम स्मॉल लेटर g से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका मैग्नीट्यूड 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है. ओके, ध्यान रखना whenever we are discussing free fall, okay, free fall मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ what I mean by free fall. whenever we are discussing free fall, ध्यान रखना जो एयर का वजह से जो रेसिस्टेंस है, यानी कि जैसे भी like whenever we are trying to move, many of times we might have already experienced एयर रेसिस्टेंस, है ना. नॉर्मली हम अपना मोशन में जैसे साइकिलिंग करते वक्त, जॉगिंग करते वक्त, वॉकिंग करते वक्त जैसे अपने हाथ को सिंक करते हैं, ऑल
and all these times we might have experienced the air resistance. So उस air resistance को भी आपको इधर फ्री फॉल का जो डिस्कशन में एयर रेसिस्टेंस को भी आपको इग्नोर करना है. ओके, सो फ्री फॉल का जो एप्लीकेशन पे हम नॉर्मली हम डिस्कस करेंगे टू केसेस. आउट ऑफ दैट फर्स्ट वन आई हैव ऑलरेडी have a diagram over here. We are going to discuss the case of a body which is dropped from a particular height. Okay, height से हमने एक body को drop कर रहा है. So हम इधर discuss करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक ये बॉडी कितने टाइम बाद नीचे पहुंचेंगे, लाइक ग्राउंड में टच कितने टाइम बाद करेंगे. ओके, ग्राउंड में टच करते वक्त इसका स्पीड कितना होगा. ओके, ग्राउंड में टच करते वक्त कितना स्पीड कितना होगा और कितने टाइम बाद ये ग्राउंड में टच करेंगे. ऑल राइट, ओके फाइन. सो ये दो चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं. सो इसमें एक चीज आप ध्यान रखना, इधर मैंने एक रेफरेंस बना रखा है. सी, दिस इज द साइन कन्वेंशन व्हाट आई एम गोइंग टू फॉलो हियर. ये जो साइन कन्वेंशन में क्या है कि देखिए, जहां से आपने अपना बॉडी को ड्रॉप किया दैट मस्ट बी ट्रीटेड एज द ओरिजिन. ओके, नाउ ऑल मेजरमेंट्स in the downward direction must be taken as negative, and all measurements from the origin in the upward direction you can take it as positive. Okay, now ये sign convention it's applicable in 2 dimension as well as 3 dimension also. That is why from the origin जो भी measurement towards right है that must be treated as positive, and the measurement towards left that must be taken as negative. Okay, fine. Now इस केस में आप देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल as I told you we are going to calculate first of all the time taken. So the thing is time taken. Time taken by the body to reach the ground. Time taken by the body to reach the ground. हमें पता है जनरल एक्सप्रेशन S इक्वल्स ut प्लस हाफ a t स्क्वायर. सो हमारा बॉडी इधर से स्टार्ट किया मोशन और ओरिजिन से डाउनवर्ड की तरफ गया, कितना लेंथ में, h डिस्टेंस में गया. Once this body was moving towards the ground, it was experiencing an acceleration g that was in the downward direction. Okay, so displacement आप लेंगे -h और acceleration भी आप लेंगे -g, क्योंकि from the origin displacement downward direction में, acceleration was also towards the earth यानी कि downward direction में. So आप इधर s का वैल्यू पुट करेंगे -h, और आपने अपना बॉडी को ड्रॉप किया हुआ है. ओके, ड्रॉप किया हुआ है, इसका मतलब u का वैल्यू क्या होगा, u का वैल्यू होंगे इक्वल टू 0. तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएंगे. ऑल राइट, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ऑलरेडी मैंने बोल चुका हूं, इट्स सपोज टू बी माइनस ऑफ g इंटू टी स्क्वायर. आपको पता है ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे. ओके, ये 2 आई कैन टेक टुवर्ड्स लेफ्ट और इस g को मैं नीचे ला सकता हूं. ओके, सो इधर राइट हैंड साइड में ओनली टी स्क्वायर बच जाएंगे. ओके, सो टी स्क्वायर का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर के एक्सप्रेशन हो जाएंगे 2h by g. So the time taken t is supposed to be under root of 2h by g. That will be the time taken. Okay, second one is जब ये नीचे आकर के हिट करेंगे, okay, उस टाइम में उसका स्पीड कितना था. okay, जिसको हम कहते हैं स्पीड ऑफ लैंडिंग. So hit करने से जस्ट पहले, that is known as speed of landing. Okay, speed of landing, because hit करने के बाद तो speed 0 है. Next is speed of landing. इसके लिए हम यूज करेंगे इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. हम इधर इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करने के पीछे रीजन क्या होता है, बिकॉज यू नो दैट अर्थ के सरफेस में एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट है. सो दिस दैट मींस द बॉडी व्हिच इज अंडर फ्री फॉल, इट इज एक्सपीरियंसिंग ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. दैट इज व्हाई हमने इधर इक्वेशंस ऑफ मोशन कंसीडर कर रहा है.
Okay, so v square equal to u square plus 2s मैंने कंसिडर किया, where v is the final speed, that is speed just before touching the ground, and u is the initial speed जो आपको already पता है कि because we had just dropped our body, we are dropping our body, that means u का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. So considering that parameters, v square equals, ये तो 0 हो जाएंगे, 2 into acceleration already हमने डिस्कस कर चुका है, from the origin downward direction में था, that is y minus g into distance travel like displacement जो है s का वैल्यू from the origin downward direction में, that is y minus of h. तो क्या हो जाएंगे, v square equals आपका क्या वैल्यू हो जाएगा, ये 2g into h. so v का वैल्यू क्या होगा, v equals to under root of 2g into h. so that is the speed by which the body is going to touch the ground. so next topic हम डिस्कस करेंगे about a body thrown vertically upward with a speed of u meter per second. So here also all that sign conventions are applicable, that is from the origin जो भी मेजरमेंट ऊपर की तरफ होंगे दैट प्लस होगा, जो भी मेजरमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगे दैट्स गोइंग टू बी नेगेटिव. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, सो दिस इज आवर ओरिजिन. हम सबसे पहले ये देखेंगे ये बॉडी कितने टाइम में ऊपर पहुंचेंगे, लाइक आफ्टर व्हाट टाइम द बॉडी विल reach to its maximum height. Okay, so here maximum height is h max. Okay, so कितना टाइम बाद ये बॉडी मैक्सिमम हाइट में पहुंच रहा है, so let that time be t1. Okay, so बॉडी आपने थ्रो किया with a speed of u मीटर पर सेकेंड. ओके, सो इधर आपको पता है कि एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है एंड दैट इज इक्वल टू g. सो सबसे पहले हम देख रहे हैं कितना टाइम में ये बॉडी ऊपर पहुंच रहा है. सो इधर फाइनल वेलोसिटी, इस केस में फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी v इक्वल टू 0 है बिकॉज ऊपर पहुंच गया मींस बॉडी रेस्ट में आ गया. इनिशियल वेलोसिटी इज प्लस u, एक्सेलरेशन a इक्वल टू माइनस g होंगे. सो इस कंडीशन को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, दैट इज v इक्वल टू u प्लस at. इस इक्वेशन में पुट करेंगे. फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन माइनस g है, टाइम टेकन t1. इसमें से हमें टाइम टेकन का वैल्यू मिलेगा t1 इक्वल्स क्या मिलेगा, t1 इक्वल टू u बाई g. सो ओरिजिन से ऊपर तक पहुंचने का टाइम है टाइम इक्वल टू u बाई g. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे इसका मैक्सिमम हाइट कितना हो सकता है. ओके, इसके मैक्सिमम हाइट कितना हो सकता है. मैक्सिमम हाइट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही सेम कंडीशन, ओरिजिन से लेकर के मैक्सिमम हाइट तक का जर्नी हम कंसिडर कर रहा है. देखिए u स्पीड से आपने फेंका था ऊपर की तरफ, हाइट वाज h max है ना, कैपिटल H max वाज द मैक्सिमम हाइट, और इधर इसकी स्पीड जो है कैपिटल V मीटर पर सेकेंड, कैपिटल V इक्वल टू 0 था. पुट करेंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as इस इक्वेशन में. फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी वाज u स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाज माइनस ऑफ g, ओके, इनटू हाइट इज h max. सो आप देख सकते हैं, इसको मैं रीअरेंज करूं, 2g इंटू h max इक्वल टू क्या हो जाएंगे, u स्क्वायर हो जाएंगे. सो इसमें से मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन मिल गया, h max इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2g. ओके, अब हम देखेंगे आपका बॉडी इधर से इधर ऊपर गया था और इधर से वापस इधर आ गया. सो इस टाइम लेट द टाइम बी t2. सो कितने टाइम बाद जिस हाइट से फेंका है उसी हाइट पे वापस आ रहा है. दिस इज द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट. ओके, सो आपको बॉडी वापस आ चुका है, जहां से फेंका उधर वापस आ चुका है. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी क्या है इस सिचुएशन में, 0. व्हेन टाइम इक्वल टू t2 में डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इक्वल टू 0. सो हम पुट करेंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. इस इक्वेशन में हम एक ये सिचुएशन अप्लाई करके देखते हैं. ओके, कैसे अप्लाई करेंगे देखिए आप. स्टार्ट विथ हियर.
सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इक्वल टू 0 है ना, आपने बॉडी ऊपर की तरफ फेंका था तो u का वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू प्लस u हो जाएंगे, टाइम टेकन इज t2, ओके, s इज इक्वल टू t प्लस हाफ at स्क्वायर, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इज माइनस ऑफ g इनटू टाइम टेकन इज t2 स्क्वायर, ओके, आपको पता है इधर ये t2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ओके, तो आपको क्या वैल्यू मिल जाएंगे, सॉरी ये तो प्लस है, तो प्लस हाफ है इसको, ये माइनस इधर आ गया ना इसलिए, सो आप देख सकते हैं इसमें g by 2 times t2 equals to u, that is t2 equals 2u by g हो जाएंगे, 2 times u by g। आपको याद होगा हमने जहां से फेंका था उधर से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का जो टाइम था that was u by g। अब वापस इधर आने का टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम 2u by g। इसका मतलब आपने जितना टाइम ऊपर जाने का टाइम, जितना टाइम ऊपर जाने में कंज्यूम हुआ है उतना ही टाइम आपका बॉडी नीचे आने में भी कंज्यूम हुआ है, ओके, सो द टाइम टेकन फॉर द अपवर्ड जर्नी इक्वल टू टाइम टेकन फॉर द डाउनवर्ड जर्नी, यानी कि टाइम टेकन फॉर द अपवर्ड जर्नी इज u by g, time taken for downward journey is also u by g, and the total time taken is 2u by g, okay, so आपने जहां से फेंका है उधर बॉडी वापस आ चुका है, ओके फाइन। नाउ वापस आते वक्त इसका वेलोसिटी कितना था, हमें पता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ओके, हमें नहीं पता फाइनल वेलोसिटी कितना है, सो v स्क्वायर लिख दिया, ओके, u स्क्वायर प्लस 2 इंटू, ओके, एक्सेलरेशन कितना था माइनस ऑफ g, ओके, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया, सो आप देख सकते हैं v इक्वल टू u आ गया। इधर ध्यान रखना आई टोल्ड की स्पीड, तो स्पीड सेम है, स्पीड सेम यानी कि जिस स्पीड से फेंका गया है उसी स्पीड से बॉडी वापस पहुंचेंगे, ओके। नाउ व्हाट अबाउट द वेलोसिटी, हियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेलोसिटी कितना होगा, आप देखिए जब बॉडी यानी कि जब बॉडी जहां से फेंका है उधर जब आपका बॉडी वापस आएंगे उस टाइम में वेलोसिटी कितना होगा, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, दैट इज v इक्वल टू u प्लस at, ओके, वेलोसिटी v इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी तो प्लस u, ओके, प्लस एक्सेलरेशन इज माइनस ऑफ g इनटू टाइम टेकन, हमारे पास एक्सप्रेशन है एज 2u by g, ओके, सो इधर से कट जाएंगे, g से g कट जाएगा, सो फाइनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपको मिल रहा है इसमें से v इक्वल टू माइनस ऑफ u, इधर देखो मैग्नीट्यूड तो पता पड़ ही गया था, मैग्नीट्यूड इज द सेम ओनली, एंड नाउ once it is velocity part it's clearly mentioned v equal to minus of u, इसका मतलब speed is same, speed is the same but direction is opposite, direction is opposite, है ना, क्योंकि जिस स्पीड से फेंका है उसी स्पीड से वापस जा रहा है, सो फेंका था आपने प्लस u स्पीड से, अब वापस आते वक्त ओरिजिन में बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रहा है, इसलिए फाइनल वेलोसिटी क्या लिखा हुआ है, माइनस u लिखा हुआ है, ओके। नाउ आपका बॉडी जहां से आपने फेंका है उस पॉइंट को भी क्रॉस किए हुए आपका बॉडी कहां पहुंच गया, नीचे ग्राउंड में पहुंच गया, ओके, आपका बॉडी ग्राउंड में पहुंच गया, सो इधर से गया ऊपर पहुंच के इधर से वापस आ गया, सो नाउ दिस इज द फाइनल पोजीशन, आपका बॉडी इधर से अपना ट्रिप स्टार्ट किया था और इधर पहुंच गया। नाउ हम देखेंगे टोटली नीचे तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, ओके, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए अगेन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये इक्वेशन यूज करेंगे। इधर आप देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना, ओरिजिन से दिस वाज द ओरिजिन है ना, दिस वाज द ओरिजिन और इधर से नीचे की तरफ है डिस्प्लेसमेंट, है ना, सो माइनस h, सो माइनस ऑफ h इक्वल्स इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ से u इनटू टाइम टेकन, मैं t3 ले रहा हूं, u इनटू t3 प्लस
हाफ ऑफ एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड ही है, सो माइनस ऑफ g इंटू t3 स्क्वायर। ओके, ये सारे टर्म मैं लेफ्ट की तरफ लेके आ रहा हूँ, सो g by 2 times t3 square minus of u times t3 minus of h equal to 0. This is of the format ax square plus bx plus c equal to 0, where value of a equals g by 2, value of b equals minus of u, and value of c equals to minus of h. हमें पता है इसमें सॉल्यूशन क्या होता है, x equals minus b plus or minus under root of b square minus 4ac by 2a. Okay, so what you have to do is आपसे वैल्यू पुट करना होगा। ओके, कैसे वैल्यू पुट करेंगे, टाइम टेकन, सो टाइम टेकन t इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ b का वैल्यू कितना है आपका u, ओके, प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b square, that is minus of u square minus of 4 into what was the value of a, a was g by 2 for ac, what is the value of c, that is minus of h, okay, upon 2a, 2 into g by 2. So this is t3, so solving this you will get the expression of what, t3, okay, this will give you the value of t3. अब आपको फाइनली इधर पहुंचते वक्त उसका वेलोसिटी कितना था आपको ये देखना है, सो फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू अगेन u प्लस at, जनरल एक्सप्रेशन हम ये यूज करने वाले हैं। ओके, सो फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी आपका क्या था प्लस u, ओके, एक्सेलरेशन इज माइनस ऑफ g इंटू टाइम टेकन इज t3, t3 का वैल्यू आपको ये सॉल्व करके मिल जाएंगे। आफ्टर सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ t3, वही t3 का एक्सप्रेशन आप इस पे पुट करोगे, you will get the value of final velocity by which the ball was touching the ground.